Welcome all of you to class of condensed matter physics. So in the previous lecture we discussed symmetry operations and symmetry elements. And today we will discuss types of lattice. Now you know what is lattice? Arrangement of points. Okay? And you can arrange the points in whatever ways. And when we place atoms on those points, we obtain entire crystal structure. सो ਹੁਣ पॉइंट्स बनाना कोई डिफिकल्ट नहीं अगर साढ़े कोल 2 डायमेंशनल स्पेस है वी कैन मेक पॉइंट्स बट द थिंग इज कि ईच पॉइंट शुड हैव आइडेंटिकल सराउंडिंग सो in case of crystals we know what is a unit cell कि unit cell वो smallest entity है ठीक है जो कि अपने आप ਨੂੰ repeat कर दिया over the entire volume so we want identical features throughout the crystal तभी वो एक crystalline solid तभी कहलाएगा right सो हर एक पॉइंट ਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਕਲ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਨੇਬਰਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 6 ਪੁਆਇੰਟਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਨੇਬਰ ਵਿੱਚ 7 ਪੁਆਇੰਟਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ this should not be the case and secondly they must obey symmetry operation ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ set of points ਨੂੰ ਉਸ lattice ਨੂੰ translation ऑपरेशन अगर उस पर अप्लाई किया या रोटेशन करवाई है या अंडर रिफ्लैक्शन या इनवर्जन ਉਹਦੇ 'ਚ कोई चेंजेस आ जान दिस शुड नॉट बी देयर सो अगर कोई लैटिस है इदां दा जिहदे विच हर एक पॉइंट दा आइडेंटिकल सराउंडिंग है एंड इट ओबेज सिमेट्री ऑपरेशन देन वी कॉल देम ब्रेविस लैटिसेस and mathematically 2 dimension which 5 type the brevis lattices ही possible ने and 3 dimension which 14 types they so first we will discuss brevis lattices in 2 dimension so basically now we know कि rotation ते या reflection ते जो lattice है it should not change ठीक है जो भी chemical nature है molecule दा और whatever group of atoms are there or ions और crystal वो as it is रहना चाहिए ठीक है invariance of lattice बहुत important है it should remain as it is जे तुसी इस एक लैटिस ਨੂੰ रोटेट कर रहे हो सो रोटेट ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ डिस्टेंस इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होना चाहिए ठीक है अगर ਤੁਸੀਂ एक सैट ऑफ लैटिस ले भी लिता और उसमें ਤੁਸੀਂ रोटेट कर दिता फिर भी रोटेशन ਦੇ बाद भी पॉइंट्स उधर ਦੇ उधर ही रहने चाहिए है ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ जो डिस्टेंस है दैट शुड बी सेम जो भी एंगल है दैट शुड बी सेम एवरीथिंग शुड बी सेम सो ये इनवेरिएंस के कारण कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगानी पैंदी है एंड दैट्स द रीजन कि ਅਸੀਂ किसी भी टाइप के अरेंजमेंट ਨੂੰ लैटिस नहीं कह देंगे कि ਤੁਸੀਂ पॉइंट्स ਨੂੰ किसी भी तरह अरेंज कर दिता एंड दैट इज़ योर लैटिस नो बिकॉज ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कुछ चेंजेस आ सकते हैं सो अगर ये सब ध्यान रखते हुए इफ़ वी ट्राई आउट मेकिंग ए लैटिस तब 2 डायमेंशन विच सिर्फ 5 टाइप दे ही पॉसिबल ने एंड 3 डायमेंशन विच ओनली 14 टाइप दे लैटिस इस तो एक्सट्रा अगर असी बनावांगे तो ਉਹਦਾ ਵਿੱਚ वेरिएंस आ जाती है okay so these are the 5 types of brevis lattices possible in 2 dimension so यानी कि जो पॉइंट्स असी अरेंज कर सकते हैं ओनली 5 वेज नाल फर्स्ट वन इज स्क्वायर सो स्क्वायर लैटिस तुसी देख सकते हो यानी कि हर एक जो मतलब पॉइंट तुसी देखोगे so if you can see they are actually making a square so square lattice which ਅਸੀਂ जो points है ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ इस distance ਤੇ place करते हैं that हर एक जो point है यानी कि वो जो 4 corners of square बना दें ठीक है so ਇਹਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਯੂਨਿਟ ਸੈਲ ਸਕੁਆਇਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਕੁਆਇਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਇੱਥੇ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਦੈਨ ਅਗੇਨ ਰਿਪੀਟ 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 ਸੋ ਸੇਮ ਹੀ ਸਕੁਆਇਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦੋਗੇ ਐਂਡ ਯੂ ਵਿਲ obtain your entire lattice so ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ ਸਕੁਆਇਰ ਲੈਟਿਸ सो ऑब्वियसली स्क्वायर विच तुहानू पता है कि जो साइड्स होंगे वो सारी इक्वल होंगी है ठीक है सो अगर असी दो प्रिमिटिव वैक्टर्स ए और बी कंसीडर करते हैं सो इत्थे ए और बी दोनों सेम होंगे हैं एंड जो एंगल होंगे वो 90 डिग्री होंगे है ओके दिस इज सेम थिंग यू नो अबाउट ए स्क्वायर नेक्स्ट कम्स हेक्सागोनल ओके हेक्सागोनल लैटिस
डोंट कंफ्यूज इट विद 6 साइड्स, ठीक है. हेक्सागोनल विच की है, दिस इज काइंड ऑफ अ रोम्बस, 60 डिग्री रोम्बस. सो रोम्बस 4 साइड ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਯੂਜੂਅਲੀ ਕਾਈਟ ਸ਼ੇਪਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗੇਨ 4 ਕਾਰਨਰਸ यानी 4 पॉइंट्स ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਸ ਸ਼ੇਪ ਦੇ 4 ਕਾਰਨਰਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ. ਐਂਡ ਨਾਓ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਕ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਸੋ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਰਿਪੀਟ 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 here also. Okay, so on repeating we obtain a lattice, hexagonal lattice. So ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ a is equal to b, again a और b same है. The only thing is कि ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ angle ਕਿੰਨਾ ਹੈ, 90 degree नहीं है, it's 120 degree. Okay, so because we can do this, ਅਸੀਂ points ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ arrange ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. Then comes oblique. Oblique और hexagonal almost same है. Oblique दा means something which is lateral. जो चीज़ सीधी perpendicular straight नहीं है, थोड़ी जी tilted है in any direction, तो उसਨੂੰ ਅਸੀਂ oblique बोल देंगे, ठीक है. But oblique और hexagonal which difference किया है कि hexagonal which we know A और B दे which जो angle है that is 120 degree and it is fixed, ठीक है. But oblique दे which the angle between A and B is not 90 degree, बस सानू इन्ना पता है, ठीक है. यानी कि वो कोई भी एंगल हो सकता है. एंड फर्दर A और B भी सेम नहीं है, यानी कि एक दी लेंथ दूजे तो डिफर करेगी. सो हेयर अगर तुसी एक पर्टिकुलर कोई एक सेल देख लो, सो हेयर यानी कि जो एक पर्टिकुलर साइड होंगी, ऑब्वियसली जो ऑपोजिट साइड्स ने वो तो पैरेलल ही होंगी, ठीक है. लेकिन उन्होंने जो एक पर्टिकुलर जो 2 साइड्स ने उन्होंने दी लेंथ बाकी दी 2 साइड्स नालों कट होएगी. एंड द थिंग इज कि जो एंगल बन रहा है ए और बी विच जिसनों कि असी गामा नाल रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज नीदर 90 डिग्री नॉर 120 डिग्री, इट कैन बी एनी अदर एंगल. ओके, सो स्क्वायर हो गया, हेक्सागोनल, देन ऑब्लिक. नाउ कम प्रिमिटिव रेक्टेंगुलर. सो रेक्टेंगुलर मीनस जो ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ पर्टिकुलर सैल है वो रैक्टेंगल की शेप विच होएगा. रैक्टेंगल की शेप विच तुहानू पता है कि एक होंदी है लेंथ और दूजी होंदी है ब्रेथ, ठीक है. सो अगर असी इसनू देखिए, सो ए पोर्शन जो है यू कैन वेरी वेल सी दैट दिस इज ए रैक्टेंगल. ऑब्वियसली ਇਹਦੀ 2 साइड्स सेम लेंथ दी होंदी है और बाकी 2 ऑपोजिट साइड्स अलग लेंथ दी. एंड हेयर यू कैन सी कि जो ए 2 साइड्स ने ये लॉन्गर है दैन द लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड. एंड जो एंगल होंदा है बिटवीन दीज 2 साइड्स दैट इज ऑलवेज 90 डिग्री. सो हेयर ए इज नॉट इक्वल टू बी बट एंगल इज डेफिनेटली 90 डिग्री बिटवीन द 2. नेक्स्ट आ गया सेंटर्ड रेक्टेंगुलर. हुन सेंटर्ड रेक्टेंगुलर विच की डिफरेंस है, यू कैन सी द अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स. बनेगा हुन भी रेक्टेंगल ही, यानी कि एक पर्टिकुलर जो सेल है वो रेक्टेंगुलर दी फॉर्म विच ही होएगा. बट द थिंग इज तुसी ये देखो जेड़े मैं येलो नाल हाईलाइट कर रही हाँ, ठीक है. सो ए पॉइंट्स ने डेफिनेटली यू कैन सी कि ए रेक्टेंगल दी शेप विच ने. सो अगेन जो कंडीशंस ने वो सेम है, दैट A is not equal to B and angle between A and B is 90 degree, ठीक है. बट फिर प्रिमिटिव और सेंटर्ड विच की डिफरेंस होया कि जो नेक्स्ट सीरीज ऑफ पॉइंट्स होंगे हैं वो सेंटर तो स्टार्ट होंगे हैं, फस्ट सैल दे सेंटर तो. हेयर हुण तुसी इस पॉइंट नू देखो, इन्हां नू ये जिहड़े हुण मैं ग्रीन नाल हाईलाइट किते हैं, अगेन ये सारे रेक्टेंगल ने, इन्हां विच A इज नॉट इक्वल टू B एंड ऑब्वियसली एंगल इज ऑल्सो 90 डिग्री, ठीक है. बट इन्हां विच की डिफरेंस सी, इत्थे सारे पॉइंट्स बस इस तरह सी अरेंज, बस रेक्टेंगल सी एंड रेक्टेंगल नू उठा उठा के असी यानी एक तो शुरू करो और सारी जगह उसनू प्लेस करते रहो. बट सेंटर्ड रेक्टेंगुलर लैटिस विच की है कि तुहाडे कोल रेक्टेंगल बन रहे ने, ठीक है, रेक्टेंगल दी फॉर्म,
एंड देन जो नैक्सट उसका पोर्शन है वो उसके सेंटर विच तुसी रखोगे. सो इफ वी हैव टू ज्वाइन, सो यू कैन सी कि एक ਤਾਂ इस तरह ਸਾਡੇ ਕੋਲ फॉर्म हो रहा है लैटिस. ठीक है. सो ऑल वी हैव टू डू इज जस्ट कनेक्ट दीज डॉट्स. ओके. सो इन्हां नूं प्रॉपरली असी ज्वाइन कर सकते हैं. सो अगर सिर्फ असी येलो डॉट्स नूं ज्वाइन कर दिए तो ये बिल्कुल प्रिमिटिव रैक्टेंगुलर लैटिस वर्गा ही लग रहा है. बट हुण इहदे विच की है होर एक्सट्रा कि इहदे सेंटर तो भी असी लैटिस स्टार्ट कर दिंदे हां. सो हुण अगर तुसी चाहो तो इसनूं वधा सकते हो, ये इस तरह दा लैटिस बनेगा. ओके. सो इस तरह इस विच की है हर एक प्लेन जो है, यानी कि तुसी एक पैटर्न बना लोगे, एक नैट की तरह तुसी समझ लो इसनूं कि एक नैट रखी और दूजी नैट बिल्कुल उसके उत्ते ही रख दी ताकि वो बिल्कुल कोइंसाइड करे. समझ रहे हो. प्रिमिटिव रैक्टेंगुलर लैटिस किद्दां बनेगा. ऑब्वियसली एक प्लेन तो नहीं होएगा, बहुत सारे प्लेन्स होंगे, लेकिन जो दूजा प्लेन है वो भी बिल्कुल इसके उत्ते ही रखा जाएगा ताकि ये सारा कोइंसाइड हो जाए. लेकिन सेंटर्ड रैक्टेंगुलर लैटिस विच की हुंदा है, एक लैटिस जिहड़ा बन गया, दूजा जब लैटिस आएगा वो है बिल्कुल सेम ही, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਥ ब्रैथ और एंगल बिल्कुल सेम है, लेकिन उसनूं असी बिल्कुल उसके उत्ते नहीं रखते, ਉਹਦੀ प्लेसिंग असी सेंटर तो करते हैं. तो जब सेंटर तो प्लेसिंग करते हो तो वो थोड़ा जब स्ट्रक्चर तुहानूं डिफरेंट दिखना स्टार्ट हो जाता है. ओके. सो दिस इज, और ये ईजी टू अंडरस्टैंड है बिकॉज एक स्क्रीन या पेपर ते तुसी 2 डायमेंशनल फिगर्स ही ड्रॉ कर सकते हो. सो फॉर 2 डायमेंशनल सिर्फ यही 5 पॉसिबिलिटीज ने साडे कोल, जिहदे विच कि हर पॉइंट की सराउंडिंग भी सेम है ते सिमेट्री ऑपरेशन भी वैलिड है. सो स्क्वायर, हेक्सागोनल, ऑब्लिक, प्रिमिटिव रेक्टेंगुलर एंड सेंटर्ड रेक्टेंगुलर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट 3 डायमेंशन. सो ऑब्वियसली हुण जिथे स्क्वायर सी तो हुण स्क्वायर दे अगर 3 डायमेंशनल फॉर्म देखनी है तो वो होएगा क्यूब, जिथे रेक्टेंगल सी ओदी जगह होएगा क्यूबॉइड. ठीक है. सो फर्स्ट आ जाता है साडे कोल क्यूबिक सिस्टम. सो क्यूब तुहानूं पता है. सो ऑब्वियसली पहली गल तो जो प्रिमिटिव वैक्टर्स ने वो भी 3 हो गए, ए बी एंड सी, एंड ऑल विल बी इक्वल, एंड जिहड़े एंगल्स होंदे हैं वो भी 90 डिग्री होंदे हैं. यू नो दैट. इन्हां विच भी अगे वी हैव डिविजन्स, जिद्दां कि सिंपल क्यूबिक लैटिस का मतलब जो पॉइंट्स ने वो हर यूनिट सैल के कॉर्नर ते ही ने, ओनली एट द कॉर्नर. ठीक है. फेस सेंटर्ड का की मतलब है, कॉर्नर्स ते तो पॉइंट्स है ही है, प्लस फेसिस दे सेंटर विच भी है. ठीक है. हुण जिद्दां अगर असी क्यूब ड्रॉ करना है, सो सिंपल क्यूबिक लैटिस का मतलब है कि सिर्फ उस जो भी यूनिट सैल है, जो भी शेप है, उसके कॉर्नर्स ते ही पॉइंट्स ने, और किते पॉइंट्स नहीं है. ठीक है. सो कॉर्नर्स 8 होंदे है क्यूब दे. सो दैट मीनस एक पर्टिकुलर जो यूनिट सैल है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 8 पॉइंट्स आ रहे हैं और वो सिर्फ कॉर्नर्स ते ही ने. फेस सेंटर का मतलब की है, कॉर्नर्स ते तो है ही है, प्लस हर एक फेस दे सेंटर विच भी है. सो हुण हर एक फेस, यानी कि अगर सिर्फ असी बिल्कुल लैफ्ट हैंड साइड वाली देखिए तो ए दे सेंटर विच भी होएगा, टॉप फेस देखिए तो ए दे सेंटर विच भी होएगा, राइट वाला फेस देखिए तो ए दे सेंटर विच भी होएगा, बॉटम फेस दे सेंटर विच भी होएगा, देन फ्रंट फेस दे सेंटर विच भी होएगा. ठीक है. और एक बैक वाले फेस दे सेंटर विच भी होएगा. सो यानी कि 6 पॉइंट्स एक्स्ट्रा आ गए हुण अगर असी सिर्फ क्यूब की गल करिए, बिकॉज तुहानूं पता है कि 6 फेसिस होंदे क्यूब दे, 8 कॉर्नर्स होंदे है. सो सिंपल क्यूबिक विच सिर्फ कॉर्नर्स ते पॉइंट्स, यानी कि सिर्फ 8 पॉइंट्स होंगे कॉर्नर्स ते. फेस सेंटर्ड क्यूबिक तो मतलब क्यूबिक तो है ही है, प्लस फेस सेंटर्ड भी है, तो हर एक फेस दे सेंटर विच भी पॉइंट होएगा. सो असी ड्रॉ कर ले लेफ्ट साइड, राइट,
top, bottom, front and back faces the center which we point. Then comes body centered. ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਬੋਡੀ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਕਿਊਬਿਕ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਪਲੱਸ ਬੋਡੀ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ. ਸੋ ਲੈਟ ਮੀ ਡਰਾ ਇਟ ਅਗੇਨ. ਆਲ ਰਾਈਟ, ਸੋ ਸਿੰਪਲ ਕਿਊਬਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਓਨਲੀ ਕਾਰਨਰਸ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ. ਫੇਸ ਸੈਂਟਰਡ ਕਿਊਬਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਰਨਰਸ ਤੇ ਵੀ ਪਲੱਸ ਫੇਸਿਸ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਔਰ ਬੋਡੀ ਸੈਂਟਰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਰਨਰਸ ਤੇ ਵੀ प्लस बॉडी के सेंटर विच भी, यानी कॉर्नर्स से तो है ही है क्योंकि जब सिंपल असी क्यूबिक लैटिस बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस लिखता तो एक क्यूबिक लैटिस इटसेल्फ मीनस कि सिंपल क्यूबिक लैटिस का पोर्शन तो है ही है प्लस बॉडी सेंटर्ड भी है. सो बॉडी सेंटर मीनस जो तुम्हारी बॉडी है इस दे सेंटर विच भी एक पॉइंट होएगा, यानी ये पूरा क्यूब है तो क्यूब दे एक सेंटर विच भी पॉइंट होएगा. सो ये बन गया तुम्हारा बॉडी सेंटर्ड. दिस इज face centered. Face centered, body centered, and this is simple cubic. So simple cubic, face centered, body centered. So common की है कि तिन्ना विच corners ते ता points definitely होंगे, ठीक है. और सब तो घट पॉइंट्स किदे विच होणगे सिंपल क्यूबिक विच, बिकॉज ओदे विच सिर्फ कॉर्नर्स ते ही पॉइंट ने. उस तो बाद किस दी बारी आंदी है, यानी उस तो ज़्यादा है ने बॉडी सेंटर्ड विच, क्योंकि ओदे विच कॉर्नर प्लस एक पॉइंट जो कि पूरे सैल दे सेंटर विच आंदा है, ठीक है. और फिर उस तो ज़्यादा किदे विच ने फेस सेंटर्ड, बिकॉज ओदे विच कॉर्नर्स ते ने एंड हर फेस दे सेंटर विच भी ने. ओके, सो क्यूबिक सिस्टम हो गया. देन वी हैव टेट्रागनल सिस्टम. सो नाउ इन्हां विच बस शेप्स ही वेरी करनगियां. सो हर सिस्टम का तुसी एक नेम याद रखना है, उन्हां दी साइड्स किवें दी है और उन्हां विच एंगल किवें है, ठीक है. बाकी सिंपल टेट्रागोनल बॉडी सेंटर्ड इन्हां दा मीनिंग वही रहेगा कि सिंपल जिथे सिंपल वर्ड आ गया मीनस ओनली कॉर्नर्स, ठीक है. सो सिंपल दा मतलब तुसी लेना है कि कॉर्नर्स ते ही प्रेजेंट ने, कॉर्नर्स ओनली. और अगर नाल फेस सेंटर्ड लग गया या बॉडी सेंटर्ड वर्ड लग गया देन यू नो फेस सेंटर्ड मीनस फेसिस दे सेंटर विच भी पॉइंट ने, और बॉडी सेंटर्ड आ गया था बॉडी दे सेंटर विच भी, ठीक है. सो तुसी हुण हर जितने जिन्ने भी ने लाइक 2 डायमेंशनल दे 5 याद करने ने एंड 3 डायमेंशनल दे 14 याद करने ही ने. दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. और सारियां च की साइड्स है, जिदा हुण टेट्रागोनल विच 2 साइड्स इक्वल ने, थर्ड साइड अनइक्वल है, और एंगल फिर स्टिल 90 डिग्री. सिंपल विच कॉर्नर्स ओनली, बॉडी सेंटर विच कॉर्नर्स, ठीक है, एंड एट द सेंटर ऑल्सो कॉर्नर्स प्लस सेंटर. फिर आ जाता है ऑर्थोरोम्बिक या रोम्बिक. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ तीनों साइड्स ही इक्वल नहीं होंगी बट एंगल स्टिल 90 डिग्री. सो सिंपल विच कॉर्नर्स, बेस सेंटर्ड. हुन एक न्यू टर्म है बेस सेंटर्ड. सो हुन बेस सेंटर्ड विच की है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये ऑर्थोरोम्बिक लैटिस है. सो एक तरह का क्यूबॉइड है, ठीक है. सो क्यूबॉइड विच लेंथ ब्रेथ हाइट होंगी है. सो हुन तुसी कंसीडर करना है कि जो असी टेट्रागोनल पढ़िया है या ऑर्थोरोम्बिक पढ़ रहे हैं, सो ये है ने क्यूबॉइड्स. लेकिन किद्दां दे क्यूबॉइड्स कि टेट्रागोनल विच जिद्दां लेंथ ब्रेथ हाइट है तो लेंथ ब्रेथ हाइट विचों कोई 2 सेम ने, एक डिफरेंट है. ऑर्थोरोम्बिक विच की है तीनों ही लेंथ ब्रेथ हाइट डिफरेंट ने. सो सिंपल विच तो तुसी समझ ही रहे हो कि ओनली कॉर्नर्स. बेस सेंटर विच की है कॉर्नर्स तो है ही है, बेस सेंटर ऑर्थोरोम्बिक लैटिस. सो सिंपल क्यूबिक जो भी नेम सिंपल अगर नेम है, ठीक है, जब भी आएगा सो इट मीन्स कि कॉर्नर वाली गल तो है ही है. सो सारे च कॉर्नर्स कॉर्नर्स एंड कॉर्नर्स तो है ही है बट कुछ एक्स्ट्रा है. बेस सेंटर्ड की कह रहा है कि 2 ऑपोजिट फेसिस दे सेंटर विच भी पॉइंट होंगे, सिर्फ कोई 2. सो सपोज अगर असी ये पिक कर ली 2 ऑपोजिट फेसिस दे सेंटर विच भी पॉइंट होएंगे, दैट्स इट. सो ये बन गया तुहाडा बेस सेंटर. सो यूजली असी बेस पिक करते हैं फिगर दा बेस. सो बेस और उसकी ऑपोजिट साइड दे विच दोनों च पॉइंट, क्योंकि अगर तुसी इसनू यही समझ लो कि 2 ऑपोजिट फेसिस और हर ऑपोजिट फेसिस
ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਲਗਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਫੇਸ ਸੈਂਟਰਡ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਫੇਸ ਸੈਂਟਰਡ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਫੇਸ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਬੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਬੇਸ ਪਿਕ ਕਰੋ ਐਂਡ ਉਸ ਦੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡ। and then comes the body center जिस which corner भी होएगा plus 1 point at the center। ठीक है, so simple base body face, simple base body face, सब तो घट simple विच, उस तो ज़्यादा base विच, उस दे बाद body विच, और no I think पहला body आएगा and सब तो ज़्यादा face। इस ਨੂੰ ਅਸੀਂ इदा कर लेने आ that सब तो घट simple विच, उस दे बाद आएगा body, because body विच की हुंदा है corner plus 1 only, 1 extra point at the center। फिर body दे बाद ले लो base। ठीक है, base विच क्योंकि 2 आ जाते हैं, फिर base दे बाद तुसी ले लो face। ठीक है, बट याद करना है simple base body face और simple body base face, इस तरह याद कर लो। ठीक है, सो सिंपल पहला आएगा सब तो घट सिंपल विच, देन कम्स बॉडी, आफ्टर दैट बेस एंड देन फेस। सिंपल बॉडी बेस फेस। देन कम्स मोनोक्लिनिक सिस्टम। मोनोक्लिनिक विच की है, one pair of axes is not at right angle to each other, also the axes are not equal। so first of all A B and C तीनों ही sides equal नहीं है और सिर्फ दो एंगल 90 डिग्री होंगे, थर्ड एंगल सम अदर एंगल होएगा। ठीक है, इट वोंट बी 90 डिग्री। अगेन ये विच सिंपल एंड बेस। देन ट्राईक्लिनिक विच की है, तीनों साइड्स भी इक्वल नहीं और तीनों एंगल्स भी 90 डिग्री दे इक्वल नहीं ने। ओके, एंड ये विच सिर्फ एक ही पॉसिबल है, दैट एट द कॉर्नर्स, यानी कि पॉइंट्स एट द कॉर्नर वाली कन्फिगरेशन ही पॉसिबल है। इस करके ट्राईक्लिनिक हमेशा सिंपल ट्राईक्लिनिक ही होएगा, ना बेस सेंटर्ड है, ना बॉडी, ना फेस। ठीक है, सो जिस विच जिन्ने दिते ने इट मीनस ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ उन्ने ही पॉसिबल ने और ਤੁਸੀਂ ਉਹ याद करने ने। मोनोक्लिनिक विच सिर्फ सिंपल एंड बेस पॉसिबल है। देन कम रोम्बोहेड्रल या ट्रायगोनल। सो कई ऑर्थोरोम्बिक और रोम्बोहेड्रल विच कंफ्यूज हो जाते हैं, सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, 3 साइड्स इक्वल ने, 3 एंगल्स इक्वल ने बट 90 ने। सो इन्हां सारियां च मीनिंग डिफरेंट है। सी ट्राईक्लिनिक विच की सी, तीनों एंगल्स 90 डिग्री भी नहीं ने और एक दूजे दे इक्वल भी नहीं ने। सो एक एंगल अगर 30 है, दूजा 40 है, थर्ड वन 60 डिग्री होएगा, 30 40 60। all three are not equal to 90 degree and all three are not equal to each other। but rhombohedral which की होएगा, definitely all three are not equal to 90 degree but still all three are equal, यानी कि सारे ही 60 डिग्री है। so 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, और I pick the smaller angle 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री, but definitely they are not equal to 90 डिग्री। और इस दे विच भी पॉइंट्स जिहड़े ने सिर्फ कॉर्नर्स ते ही हो सकते ने। सो यू हैव सिंपल रोम्बोहेड्रल। ठीक है, या तो कह लो सिंपल रोम्बोहेड्रल लैटिस या कह लो सिंपल रोम्बोहेड्रल लैटिस और ट्राइगोनल, सिंपल ट्राइगोनल। देन कम्स हेक्सागोनल। इस दे विच की है, 2 sides are equal, third side is not, and 2 angles are 90 degree, third is 120 degree। जिदा असी पहला पढ़िया सी कि जो 2 डायमेंशन विच हेक्सागोनल लैटिस होंदा है, ਉਹਦੇ विच A और B प्रिमिटिव वेक्टर विच एंगल 120 डिग्री होंदा है। एंड सो नाउ जो क्रिस्टल सिस्टम्स ने वो तो 7 है, 7 क्रिस्टल सिस्टम बट 14 ब्रेविस लैटिसेस। सो ये भी याद रखना है, यानी कि 14 ब्रेविस लैटिसेस मीनस इन टोटल, भावें वो बॉडी सेंटर तुसी इंक्लूड कर रहे हो, फेस सेंटर्ड आ गया, बेस सेंटर्ड आ गया या सिंपल आ गया, वो सारे पॉसिबिलिटीज़ ਨੂੰ मिला के जो टोटल बनता है वो 14 बनता है। बट जो क्रिस्टल सिस्टम है वो 7 टाइप का है, यानी कि एक क्रिस्टल सिस्टम है क्यूबिक, सिंपल क्यूब, और आई वुड से ओनली क्यूबिक। एक क्रिस्टल सिस्टम है क्यूबिक और ਉਹਦੇ 3 पॉसिबिलिटीज़ ही हैं।
सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, ठीक है। देन कम्स योर टेट्रागनल। सो टेट्रागनल एक क्रिस्टल सिस्टम है, बट अगे उसके किन्ने टाइप्स पॉसिबल ने, एक सिंपल और एक बॉडी सेंटर्ड। फिर आ गया क्रिस्टल सिस्टम ऑर्थोरोम्बिक। सो ओदे किन्ने पॉसिबल ने, 4 पॉसिबल ने, सिंपल, बेस, बॉडी, फेस। देन कम्स मोनोक्लिनिक। सो मोनोक्लिनिक विच 2 पॉसिबिलिटीज ने, सिंपल मोनोक्लिनिक, बेस सेंटर्ड मोनोक्लिनिक। देन ट्राईक्लिनिक दी एक ही पॉसिबिलिटी है, रोम्बोहेड्रल भी एक टाइप का ही और हेक्सागनल भी। सो क्यूबिक, टेट्रागनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राईक्लिनिक, रोम्बोहेड्रल एंड हेक्सागनल, ये हो गए 7 क्रिस्टल सिस्टम्स। लेकिन हुण अगर तुसी सारिਆਂ ਨੂੰ काउंट करो कि इन्हां च किहड़ी-किहड़ी पॉसिबिलिटीज ने, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। सो यानी इन टोटल 14 ब्रेवियस लैटिसेस ही पॉसिबल ने, यानी जो भी तुहाडे एटम्स ने वो बस इन 14 टाइप्स की तरह ही अरेंज होंगे हैं। इस तो अलावा होर कोई अरेंजमेंट नेचर विच नहीं देखा गया। ओके, 7 क्रिस्टल सिस्टम, 14 ब्रेवियस लैटिसेस। सो ये टेबल है, ये तुहानू याद करना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किन्ने लैटिसेस पॉसिबल ने, ठीक है। सो इन टोटल साडे कोल किन्ने बन गए, 14। 3 + 2 + 4 + 2 + 1 + 1 + 1 14। एंड सिंबल्स असी की यूज करते हैं, सिंपल लई असी पी वर्ड यूज करते हैं, बिकॉज सिंपल ना भी कह के असी प्रिमिटिव कह देंगे हैं। सो प्रिमिटिव। बेस लई असी सी यूज करते हैं, फेस लई असी एफ यूज करते हैं एंड बॉडी लई असी आई यूज करते हैं। सो जिस विच जेड़ा पॉसिबल है वो सिंबल्स तुसी याद कर लेने ने। देन कम्स क्रिस्टल प्लेन्स एंड मिलर इंडिसेस। नाउ हुण जो तुसी एक लैटिस पढ़ रहे हो, ठीक है, ये एक तरह का प्लेन बनाता है। क्रिस्टल के प्लेन्स होंगे हैं जो कि अगर तुसी देखो, जो तुसी 2 डायमेंशनल लैटिस पढ़ी, वो एक तरह का प्लेन है। रैक्टेंगुलर प्लेन होएगा, स्क्वायर प्लेन होएगा, हेक्सागनल प्लेन होएगा, ठीक है। सो वो प्लेन्स आपस च अलाइन होंदे जाते हैं एंड तुहाडे कोल एक एंटायर 3D क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिल जाता है। ओके, सो क्रिस्टल दे प्लेन जिद्दां तुहानू पता है व्हाट इज ए प्लेन। सो द लैटिस पॉइंट्स may be considered to be lying on different set of planes such that each set of plane has a particular orientation with reference to the axis of unit cell। हुण जेड़े भी ये planes ने उन्हां दा जो असीं एक एक्सिस यूनिट सैल का पिक करते हैं, ए बी सी जिन्हों, या क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस जो असी पढ़िया सी। हुण हर एक प्लेन जो है वो एक अपने ही वे नाल अरेंज होएगा, ओदी एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन होएगी विद रिस्पैक्ट टू एक्सिस। सो ये जिहड़े भी प्लेन्स ने इन्हां नूं असी क्रिस्टल प्लेन्स कहने हैं। और मिलर ने डिवाइस किया सी एक सिस्टम जिस दे नाल असी इन्हां प्लेन्स नूं नंबर्स दी हेल्प नाल रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड बिकॉज वी डील विद 3 डायमेंशनल सिस्टम, सो 3 स्मॉलेस्ट इंटीजर्स नो यूज करके असी अपने प्लेन्स नो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो दिस सिस्टम वाज डिवाइस्ड बाय मिलर। सो किद्दां बनते ने वी विल सी, बट वी कॉल दैम मिलर इंडिसेस, ठीक है। बेसिकली दीज आर नंबर्स विच रिप्रेजेंट प्लेन्स। सो नोटेशन की है, पहला तुसी ये देखो दैट देयर इज दिस एक तरह का ये लैटिस है। और अगर असी सिर्फ 2 डायमेंशन की गल करिए, 2 डायमेंशन विच, सो अगर तुसी कोई भी 2 पॉइंट्स लै रहे हो, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तुहानू एक ओरिजिन और एक कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज करना पड़ेगा। पूरे लैटिस विच किसी एक नू तुसी ओरिजिन चूज करोगे और उस दे अलोंग तुसी अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाओगे, ठीक है। सो अ सुटेबल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और कोऑर्डिनेट सिस्टम इज चोजन।
सो टू डायमेंशनल विच की है डायरेक्शन ऑफ लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन एंड एंडिंग एट अ पॉइंट may be obtained by assigning coordinate of first number point, ठीक है, through which line passes. So suppose ਤੁਹਾਡਾ point A है और रिमेंबर कि ये पूरा एक लैटिस है। अगर तुसी एटम की गल कर रहे हो, तुसी एक एटम ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, एक लैटिस ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ एक पॉइंट ਨੂੰ, ਉਸ ਨੂੰ ओरिजिन बना ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਤੁਸੀਂ एक्सिस कर ਦਿੱਤੇ कंसीडर। ਹੁਣ कोई भी ये सपोज करो कि ये सारे बाकी पॉइंट्स ने, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ किसी भी पॉइंट ਦਾ पोजीशन फाइंड करनी है, you can find it easily. First of all, let me show that these all are points, ठीक है। सो ए और बी, ए भी एक पॉइंट ने, एक लैटिस विच प्रेजेंट ने, साडे कोल एक लैटिस है। हुण इस लैटिस विच असी दो पॉइंट्स ले ले ए एंड बी, एंड ऑब्वियसली किसी एक पॉइंट नू असी ओरिजिन बना दिता, सो दिस इज अवर ओरिजिन। उस दे अलोंग असी कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसीडर कर लिया, एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम। हुण अगर पॉइंट ए है, सो बेसिकली एक लाइन स्टार्ट होएगी ओरिजिन तो एंड इट विल एंड एट दैट पॉइंट। हुण अगर तुसी उस पॉइंट दा कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, इट इज़ ईजी फॉर यू। असी दस सकते हैं की होएगा इसका, ए दा की कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट पहला आंदा है, वाई बाद। सो 1 2 3 4, इट मीन्स 4, 1 2, ठीक है। बी ली की होएगा 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। इहदा कोऑर्डिनेट सिस्टम असी पढ़िया होया मैथ्स विच। हुण द थिंग इज, जब ये लाइन है, ठीक है, ये ओरिजिन तो स्टार्ट हो रही है, असी सिर्फ उसे पॉइंट नू लिख सकते हैं जब लाइन उस पॉइंट तो क्रॉस हो रही होवे, ठीक है। हुण देखो ए पॉइंट तक जान लई लाइन जिहड़ी है वो किन्ने पॉइंट्स नू क्रॉस करके ए ते पहुंची, ओनली 1 पॉइंट नू क्रॉस करके। ओदे ट्रैक विच, ओदे पाथ विच पहला ए पॉइंट आया 2 1, उसके बाद आया पॉइंट ए, ठीक है। इसके अलावा और कोई पॉइंट असी नहीं लिख सकते, वाई, बिकॉज लाइन उस तो पास नहीं हुई। सिर्फ वही पॉइंट्स मैटर करते हैं जिस तो लाइन फ्रॉम ओरिजिन पास होवे। सिमिलरली बी पॉइंट ते पहुंचन च जो लाइन सी फ्रॉम ओरिजिन, वो किन्ने पॉइंट्स तो होके गई, 2 पॉइंट्स। पहला पॉइंट केड़ा सी 1 1, दूजा पॉइंट केड़ा है 2 2, and then comes your point B, which is 3 3. Understood? हुण देखो इसकी रिप्रेजेंटेशन। देयरफॉर अगर तुसी किसी भी पॉइंट नू डिस्क्राइब करना है तो तुहानू जरूरी नहीं, जिद्दां हुण पॉइंट ए की गल हो रही है, तो जरूरी नहीं कि तुसी उसनू 4 और 2 नाल ही डिस्क्राइब करना है। तुसी जो लाइन क्रॉस हो रही है तो वो जिस भी पॉइंट तो पास होके गई है, जो पहला पॉइंट सी ओदे पाथ विच आया, सिर्फ तुसी उस नाल ही उसनू रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगेन द थिंग इज, हुण जो लाइन पॉइंट ए ते पहुंच रही है ओरिजिन तो स्टार्ट होके, ठीक है। सो बेसिकली सानू पता है कि ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन तो आ रही है। अगर पॉइंट ए ते जेड़ी लाइन पहुंची है, इट मीन्स वो लाइन आ रही है ओरिजिन तो ही, दिस इज फाइनल। और ओरिजिन ऑलरेडी फिक्सड है, वी ऑलरेडी नो कि असी किस पॉइंट नू ओरिजिन फिक्स किया, ठीक। हुण अगर तुसी रिप्रेजेंट भी करना है इस ओ ए लाइन नू, अगर इस ओ ए लाइन नू रिप्रेजेंट करना है तो जरूरी नहीं कि तुसी इसनू ए पॉइंट तो ही रेफर करोगे, नो। जद ये लाइन स्टार्ट हुई ओरिजिन तो, और जेड़ा फर्स्ट पॉइंट आया इस दे पाथ विच, उस दे नाल तुसी इसनू रेफर कर सकते हो। सो 4 2 तो बाद च आया, उस तो पहला 2 1 पॉइंट आ गया सी। सो इट मीन्स अगर तुसी ओ ए वाली लाइन नू, ओ ए, सी हियर इट इज रिटन, ओ ए passes through points 2 1, 2
2 1 4 2 एंड सो ऑन, ठीक है। देयरफॉर इट मे बी डिस्क्राइब्ड बाय फर्स्ट होल नंबर कोऑर्डिनेट्स 2 1। तो इस लाइन ये लाइन पास हो रही है 2 1 तो फिर 4 2 तो पास हुई, फिर जाके अगे होर भी पॉइंट्स आएंगे बिकॉज ये लैटिस तक कंटिन्यूस है, ठीक है। सो बट अगर असी इसनों रेफर करना है, डिस्क्राइब करना है, सानू सिर्फ फर्स्ट कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए एंड दैट इज इनफ। सिमिलरली पॉइंट बी लई, पॉइंट बी वाली लाइन ओरिजिन तो ही आ रही है और ओरिजिन तो स्टार्ट होके पहला पॉइंट केड़ा आया 1 1, देन केम 2 2, देन केम 3 3 विच इज अवर पॉइंट बी। सो ओ बी लाइन पास हो रही है 1 1 तो, देन 2 2 3 3 एंड सो ऑन। लेकिन अगर असी इसनू रिप्रेजेंट करना है सो साडे लई जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट सी only that is more than enough, that is enough to represent this line. So it can be described only by first whole numbered point 1 1. So 1 1 कह दो, पता चल जाएगा कि OB लाइन है और असी इसके अगे दे पॉइंट्स भी फाइंड कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? बिकॉज सिमिट्री है। अगर सानू लैटिस की शेप पता चल गई तो सानू पता है कि इसी तरह का लैटिस थ्रू आउट होएगा, क्योंकि असी क्रिस्टल बारे गल कर रहे हैं, क्रिस्टलिन सॉलिड, और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक ही पैटर्न थ्रू आउट रिपीट होंदा है। ये है 2 डायमेंशनल विच। सिमिलरली 3 डायमेंशनल केस विच की होएगा, 3 कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, 3 नंबर्स आ जाएंगे। ओके, सो हुण अगर इथों ओरिजिन है एंड दिस इज इफ इट लुक्स लाइक अ क्यूब, ठीक है। सो अगर क्यूब है सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी अगर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ पॉइंट ए ਦੀ ਗੱਲ हो रही है, सो इसनों अगर असी रिप्रेजेंट करना है सो किद्दां होएगा रिप्रेजेंट? फर्स्ट थिंग जो ये ओए लाइन है ये किहड़े प्लेन विच है? एक्स एंड जेड प्लेन, ठीक है। एंड सपोज ये एक्स कोऑर्डिनेट 1 है और जेड कोऑर्डिनेट भी 1 है, बट वाई प्लेन विच नहीं है ये लाइन, सो इसका वाई कोऑर्डिनेट की होया 0। सो दैट मीन्स हुण ओ ए लाइन की हुई 1 0 1 और इसनों लिख देने असी स्क्वायर ब्रैकेट्स विच, ठीक है। सो ये 1 की जगह 2 भी हो सकता है, डिपेंड्स कि कितना असी ट्रैवल किया है। बेसिकली वही तुहाडा कोऑर्डिनेट सिस्टम असी इत्थे कंसीडर कर रहे हैं कि एक क्यूब है, इट इज़ अ क्यूब और ये सारे जो पॉइंट्स ने ना दीज आर 1, ठीक है। ये असी आप कंसीडर कर लिया। सो ओ ए लाइन सिर्फ एक्स जेड प्लेन विच है और कित्थे तक जा रही है? अगर इसनों असी ज्वाइन कर दिए तो एक्स दे 1 नाल कोइंसाइड कर रही है और जेड दे भी 1 नाल, बट वाई दा कोऑर्डिनेट 0 है। सो ओ ए लाइन बन गई 1 0 1। सो पहला आंदा एक्स, फिर वाई, फिर जेड। सिमिलरली लाइन ओ डी देखो, हुण लाइन ओ डी कित्थे है? ये तीनों दे रिस्पेक्ट विच है। इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी है बिकॉज देखो लाइन जो इस तरह जा रही है ये राइट हैंड डायरेक्शन यानी कि एक्स डायरेक्शन विच भी डिस्टेंस कवर कर रही है, ये थोड़ी जी आउटवर्ड्स है, ठीक है, यानी कि फ्रंटली भी मूव की है। ओरिजिन लग रहा है कि ओरिजिन पीछे है और ये जो डी पॉइंट है अगे है, सो ये फ्रंट विच भी मोशन हुई है। सो दैट मीन्स जेड डायरेक्शन विच भी मोशन है, प्लस ये कुछ हाइट भी है, ठीक है ना। ओ तो डी काफी उत्ते है, सो दैट मीन्स वाई डायरेक्शन विच भी ये मूव किया है। सो हेयर एक्स वाई और जेड तिना विच ही ये इक्वल मूव किया है। इट डिपेंड्स, ये तो तुहानू दस दिता जाएगा क्वेश्चन विच कि कितना वो ट्रैवल किया है और पॉइंट्स मैंशन होंगे। सो इत्थे असी कंसीडर करें कि ए भी उही है, जिदा ए लई 1 पॉइंट सीगा सो सेम डी लई भी 1 है, बट सिंस एक्स विच भी डी जो पॉइंट है वो एक्स, उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी 1 है, उसका वाई कोऑर्डिनेट भी 1 है, उसका जेड कोऑर्डिनेट भी 1 है, इस करके ओ डी नू असी एक्सप्रेस कर सकते हैं 1 1 1। ओके, नाउ कम्स ओपी। हुण देखो जो ओपी पॉइंट है वो हाफ वे है, पूरे क्यूब दे एंड ते नहीं गया, यानी कि असी जो लाइन सी वो एच तक नहीं बनाई, एच तक बना दी तो वो पूरा एज ते पहुंच जाता क्यूब दे बैक साइड दे एज ते, बट वो मिडवे ही रुक गया पॉइंट, यानी लाइन
ओरिजिन तो स्टार्ट होके मिडवे ही गई है, ठीक है। सो हुण इहदे विच तुसीं देखो कि ये मिडवे कित्थे कित्थे ट्रैवल होया एक्स। देखो अगर इसकी राइट हैंड साइड विच गया तो है, बट जिन्ना 1 तक जाना चाहिए सी उन्ना नहीं गया। सो असी लै लेने हाफ। वाई दा असी देख रहे हैं फुल ही है, ठीक है, क्योंकि ये देखो ये जो है सेम प्लेन है जो उत्ते वाले इहदा फेस है। अगर असी इत्थे नंबर 1 लिखिया मैं एफ पॉइंट ते, तो बेसिकली एफ ई डी सी एच के और पी ये सारे 1 नू ही तो रेफर कर रहे हैं, ठीक है। 3 डायमेंशनल फिगर नू 2 डायमेंशन विच समझना थोड़ा जा औखा हो जाता है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। सो ये पी बेसिकली 1 कोऑर्डिनेट बन गया इसका, और इसका z कितना होएगा, दैट इज ऑल्सो हाफ, बिकॉज ये उन्ना अगे या उन्ना पीछे नहीं गया, इस सी तक नहीं गया, ये सिर्फ पी तक ही गया। सो हाफ वे, सो इट्स हाफ 1 एंड हाफ। बट जो ये मिलर इंडिसेस है असी कभी भी इन्हां नू फ्रैक्शन विच नहीं लिखते। फ्रैक्शन विच नहीं लिखते तो फिर की करना पएगा, सानू लेना पएगा एलसीएम। ओके, सो इस पॉइंट पी लिए आंसर आया साडे कोल हाफ 1 हाफ। सो असी की करांगे एलसीएम ले लांगे। एलसीएम नाल की बन जाएगा दिस 1 2 1। सो आंसर आ जाएगा 1 2 1। असी फ्रैक्शंस विच नहीं लिखते, असी प्रॉपर इंटीजर विच ही लिखते हैं। असी क्या है ना कि मिलर इंडिसेस की है 3 स्मॉलेस्ट इंटीजर्स, सी 3 स्मॉलेस्ट इंटीजर्स। सो इंटीजर फ्रैक्शन थोड़ी होंगे है, ठीक है। सो अगर फ्रैक्शन आ रहा है तो की करना है, एलसीएम ले लो एंड जो भी तुहाडा न्यूमरेटर बनता है दैट विल बी योर आंसर। सो इस करके हाफ 1 हाफ की बन गया 1 2 1। सो ये जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन नू असी शो करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स नाल, यानी कि ये नंबर्स असी स्क्वायर ब्रैकेट दे विच ही लिखांगे। देन नो कॉमर्स, नंबर्स दे विच कोई कॉमर्स नहीं पाने। सो ये रूल्स ने कि मिलर इंडिसेस कितना लिखना है, ठीक। फर्दर जिदा 101 है तो इसको 101 ही पढ़ना है, बिकॉज ए एक्स वाई और जेड नू रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कोई नंबर नहीं है, ये कोऑर्डिनेट्स रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक्स विच कितना, वाई विच कितना और जेड विच कितना। सो इसनू 101 पढ़ना है, ना कि 101। अगर कोई इंडेक्स नेगेटिव है, बिकॉज पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन भी होएगी, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन भी पॉसिबल है, सिमिलरली पॉजिटिव वाई नेगेटिव वाई, पॉजिटिव जेड नेगेटिव जेड। सो अगर कोई पॉजिटिव है तब वी विल डिनोट इट ओनली बाय नंबर, बट अगर कोई नेगेटिव कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसके उत्ते असी लगा देने बार। सो हुण 1 बार 1 0 का मतलब की है कि जो एक्स कोऑर्डिनेट है फर्स्ट इंडेक्स है वो नेगेटिव है। हुण पढ़ लेने रूल्स कि अल्टीमेटली मिलर इंडिसेस कितना पॉइंट करने फाइंड करने हैं। सो फर्स्ट थिंग इज चूज एनी पॉइंट इन द क्रिस्टल लैटिस। तुहाडे कोल लैटिस है, पॉइंट्स ही पॉइंट्स गिवन ने, तुसी कोई एक पॉइंट चूज करोगे और उसनू बना दोगे ओरिजिन, उस दे अलॉन्ग तुसी कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लोगे एंड यू विल कंसीडर 3 बेसिस वेक्टर्स ए बी सी, ठीक है। सो ऑब्वियसली ए एक्स विच जाएगा, बी वाई विच एंड सी जेड विच। सो पहला पॉइंट चूज करना है, उसमें ओरिजिन बना दो एंड फाइंड फॉर्म द कोऑर्डिनेट एक्सिस। फिर की करना है, हुण जो भी तुहाडा प्लेन है, असी मिलर इंडिसेस प्लेन दे फाइंड करते हैं। हुण जो भी प्लेन है तुसी देखना है कि वो कित्थे कित्थे इंटरसेप्ट कर रहा है ऑन द 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। सपोज साडे कोल कोई पॉइंट सी, ठीक है। सो हुण असी की कीता, साडे कोल जो भी क्रिस्टल लैटिस सी, ठीक है, उहदे विच असी एक पॉइंट चूज कर लिया और उसनू ओरिजिन बनाता। सो एक पॉइंट है जो रेड डॉट नाल है, ठीक है, और उसनू असी ओरिजिन बनाता और उस तो असी जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है वो बना देते। सो ऑब्वियसली ए प्रिमिटिव वेक्टर, बी प्रिमिटिव वेक्टर, सी प्रिमिटिव वेक्टर। हुण जो भी प्लेन है, ये जो ट्रायंगुलर जी फिगर है ये है तुहाडा प्लेन, इस दे तुसी मिलर इंडिसेस फाइंड करने हैं। तो पहला तुसी ये देखोगे कि ये जो प्लेन है ये एक्स वाई और जेड नू कित्थे कट कर रहा है।
ਇੰਟਰਸੈਪਟਸ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਇੰਟਰਸੈਪਟ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਪਲੇਨ ਹੈ ਇਹ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਭ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਾਈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜ਼ੈਡ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿੱਥੇ ਕੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਐਕਸ ਵਾਈ ਐਂਡ ਜ਼ੈਡ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਹੈ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਆਏਗਾ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੇ ਵੁੱਡ ਬੀ ਮਲਟੀਪਲ ਆਫ ਬੇਸਿਸ ਵੈਕਟਰ। ਸੋ ਅਗਰ ਬੇਸਿਸ ਵੈਕਟਰ ਤੁਹਾਡਾ a ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ x ਨੂੰ ਲਿਖ ਦੋਗੇ n1 a, n1 ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਹੋਏਗਾ, y ਹੋ ਗਿਆ n2 b, z ਹੋ ਗਿਆ n3 c, ਮਤਲਬ a b c ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ i ਕੈਪ j ਕੈਪ k ਕੈਪ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੰਬਰਸ ਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਨੰਬਰ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲੋਗੇ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਾਈਡ ਬਾਏ ਸਾਈਡ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿੱਤਾ, ਪਲੇਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ 2a ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਅਗਰ x ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਦ ਨੰਬਰ ਇਨਟੂ a, ਮਲਟੀਪਲ ਆਫ ਬੇਸਿਸ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, क्योंकि a जो है वो प्रिमिटिव वेक्टर है या बेसिस वेक्टर है x एक्सिस ਲਈ, b वेक्टर ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਹੈ बेसिस वेक्टर फॉर y एक्सिस और c है बेसिस वेक्टर फॉर z एक्सिस, ठीक है। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਿ x ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ 2a ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਆ ਗਿਆ, y ਲਈ 3b ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਆ ਗਿਆ ਔਰ z ਲਈ 4c ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਆ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਸ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਨੰਬਰਸ ਕੀ ਨੇ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਨੰਬਰਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਓ ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਕੱਢ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਲਿੱਤੇ 2 3 4 ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਔਰ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਬਣ ਗਿਆ 1/2 1/3 1/4। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਨਸਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੰਟੀਜਰ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਨੇ ਇਨਟੂ ਸਮਾਲਰ ਇੰਟੀਜਰ ਬਾय ਮਲਟੀਪਲਾਈਂਗ ਈਚ ਵਿਦ देयर एलसीएम। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਨ ਤਿੰਨਾਂ ਨੰਬਰਸ ਦਾ एलसीएम फाइंड करना, और हमेशा 3 नंबर ही होंगे बिकॉज ਅਸੀਂ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ 4 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ 5 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ठीक है। जो है वो 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੰਬਰਸ 3 ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਨੇ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ एलसीएम फाइंड करांगे और हर एक उस रेसिप्रोकल ਨੂੰ एलसीएम ਨਾਲ मल्टीप्लाई कर ਦਾਂਗੇ। ऑन डूइंग दैट वी विल ऑब्टेन प्रॉपर नंबर। ਉਹ ਨੰਬਰ ਹੋਣਗੇ ਸਮੋਲੈਸਟ ਇੰਟੀਜਰ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਫਾਈਨਲ ਆਨਸਰ ਆਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ HKL ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੋ ਇਹ ਨੰਬਰਸ ਆਣਗੇ ਦੇ ਆਰ HKL, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਿਲਰ ਇੰਡਿਸਿਸ, ਔਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ HKL within square brackets। so ਹੁਣ 1/2 1/3 and 1/4 ਦਾ LCM ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 2 3 और 4 ਦਾ LCM ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 12। ਸੋ ਅਗਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 12 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਸੋ what you will get, 1/2 ਨੂੰ 12 ਨਾਲ ਕੀਤਾ 6, 1/3 ਨੂੰ 12 ਨਾਲ ਕੀਤਾ 4, 1/4 ਨੂੰ 12 ਨਾਲ ਕੀਤਾ 3। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਜੋ 3 ਨੰਬਰਸ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਨਲ ਆਨਸਰ। So here this 6 is your H, 4 is K and 3 is L। So ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਫਾਈਨਲ ਆਨਸਰ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ 643, और 643 नहीं बोलना, दिस इज 643, नो कॉमर्स, ओके। और हमेशा जो आंसर है विद इन स्क्वायर ब्रैकेट रहेगा और वो होंगे इंटीजर्स। सो दिस इज द रूल टू फाइंड मिलर इंडिसेस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।